to start today's topic. Hello, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. So we are going to revise General Muhammad Ziaul Haq today, right? मेरा फेवरेट वैसे मिस्टर ज़ियाउल हक कहाँ से आ गया? मैं इसको शुरू में नहीं करना ख्वाजा नाज़िमुद्दीन वगैरह वो I'm going to revise that topic with the review of 10 years, यानी first decade of Pakistan. वो political instability के हवाले से मैं एक ही topic के अंदर करूँगी, जैसे कि we have revised 3 reforms in comparative studies. तो उसी तरह से मैं आपको ना वो भी question करवाऊंगी, ठीक है? मिस्टर अयूब खान और जुल्फिकार अली भुट्टो। अच्छा, जुल्फिकार अली भुट्टो आपके साथ मैंने डिस्कस नहीं किया, ठीक है? तो पहले फिर ऐसा करते हैं, मैं आपके साथ जुल्फिकार अली भुट्टो का टॉपिक कर लेती हूँ। आई थिंक सो कि मैंने आपके साथ वो डिस्कस कर लिया, क्योंकि बाकी लोगों के साथ मैंने वो काम कर लिया था, तो मैंने ये सोचा कि शायद मैंने आपके साथ भी वो कर लिया। नहीं मिस्टर नहीं किया हुआ। ठीक तो अयूब खान भी नहीं करना। अयूब खान का टाइम पीरियड जो है वो 58 मार्शल लॉ की इम्पोजिशन से रिलेट करता है, इसलिए मैं उसको उन मिनिस्ट्रीज के साथ रिलेट करके करूंगी, इसलिए मैंने वो रखा है, ठीक है? ये टॉपिक जो है ये उससे सेपरेट टॉपिक है, मैं सेपरेट टॉपिक को आज क्लास के अंदर डिस्कस करना चाहती हूँ, ठीक है? राइट, सो वी विल स्टार्ट रिवीजन. The topic is Ministry of Zulfikar Ali Bhutto, right? Zulfikar Ali Bhutto's time period started in 1971 and ended in 1977. First of all, we have to discuss the problems of Bhutto's government. The first problem he faced was demoralized and dismayed population. The population was demoralized because you all know that in 1971 East Pakistan separated and Bangladesh created. So it was a big event for Pakistani nation, and that is why Pakistan army as well as the nation of Pakistan was demoralized. इसमें हम ये भी देखते हैं कि as a result of separation of East Pakistan, 93,000 soldiers were under the 93,000 soldiers were captured by Indian miss. हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, राइट जी मिस आ रही है, राइट, ओके। सो मिस आपने कहा कि प्रॉब्लम्स फॉर भुट्टो के अंदर ये पॉपुलेशन डिमोरलाइज्ड और डिसमेड थी मिस, लेकिन आपको नहीं लगता ये भुट्टो के लिए एक ज्यादा लैंडफॉल और एक अच्छी बात थी कि लोग वो थे, क्या कहते हैं, डिमोरलाइज्ड, बिकॉज वो भुट्टो में एक लीडर फिर देखते हैं और एक उन्हें कोई ऐसे लाइक जब लोग डेस्परेट होते हैं तो वो दूसरों में ढूंढते हैं कि हमें कोई सहारा मिल जाए, इस तरह लाइक वो तो याहिया खान से नाराज तो बढ़ते नहीं है। अगर वो भुट्टो उन एक्सपेक्टेशन पे ना पूरा होता था तो भुट्टो की जलालत ना होती। हाँ बिल्कुल, ये देखो, बिकॉज देखो इसके यू हैव टू डिस्कस टू बोथ साइड्स हियर ना, यानी इट कम्स अंडर प्रॉब्लम एज वेल, बिकॉज वी विल रिलेट इट as a problem, क्योंकि in the coming years he had to take some radical steps to control these problems, because if you see in the previous year you can see that there was a strong hold of army here. So if the Bhutto is facing interference of army, then the political government again would be unstable. So that is the problem which faced by Bhutto's government, because you can see that if army was dismayed or demoralized, although it was a blessing, but on the other side you can see that this was a problem, a crucial point for Bhutto's government, because he has to settle down this issue to 93,000 agar soldiers ho India ke paas, so that comes a problem for the army, or that it must be a problem for Pakistan as well. So isko hum problem ke andar bhi to shamil karenge na. ये जरूर है कि बिहाइंड द सीन दिस कम्स अंडर द ब्लेसिंग एज वेल, लेकिन जो आपको सामने चीज नजर आ रही है उसके अकॉर्डिंगली तो ये एक प्रॉब्लम ही है ना, जिसको सेटल डाउन करना भुट्टो के इम्पोर्टेंट इश्यूज के अंदर शामिल था, राइट? बिल्कुल ठीक हो गया।
ओके जी, अब हम नेक्स्ट उसके अंदर करते हैं बात, क्योंकि शटर्ड गवर्नमेंट, भुट्टो adopted a shattered government from General Yahya Khan because he was unable to control the situation after the separation, so he handed over government to Bhutto, and Bhutto take over as first civilian martial law administrator, right? अब नंबर 2 हम यहाँ पर बात करेंगे steps to solve the problems which we discussed earlier. What he did, the problem number 1, he dealt with this problem, यानी problem जो it's related to foreign affairs. He signed Simla agreement, ठीक है? He signed Simla agreement with Indira Gandhi, the Prime Minister of India. One positive thing related to Simla agreement was that 93,000 Pakistani soldiers were released. But one negative thing which we have to face, that according to this agreement, Pakistan and India were decided that they will not discuss Kashmir issue on any international forum. Okay? So this comes again, this comes one positive point and one negative point. इसके बाद we will talk about the other matters which are related to reforms he introduced during his time period. We all know that Bhutto served as a foreign minister in General Ayub Khan's time period. So he know about the radical reforms of General Ayub Khan. So he tried to continue those reforms with some changes. So first of all, he addressed to agricultural reforms. Objectives of these reforms were: number 1 objective, to increase the productivity. Number 2 is to break the stronghold of big landlords. Number 3 is to give tenants security. And number 4 is to provide a better welfare system. So if we see that how we will talk about the steps first and then the analysis, because if we go through any reforms, we will just divide it in 3 subtopics. Number 1 is objectives, number 2 is step, and number 3 are analysis. So if we go through these reforms in these 3 different subtopics, then we will able to attempt 4 mark, 7 mark, and 14 mark question easily. And our reading as well as writing would be with focused approach, और इससे हमारा काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा. इसीलिए मैंने इसको इस तरह से आपके साथ डिस्कस करना शुरू किया है. Then we will come about the steps here. Land sealing. What does land sealing mean? Would you share your information here? बेसिकली लैंड सीलिंग वो थी कि उन्होंने ना लाइक वो लगा दिए थे, लिमिट्स लगा दी थी इरिगेटेड और अनइरिगेटेड लैंड को जो होल्ड कर सकते हैं. Yes. मैं यानी 250 और 500 पे थी. राइट, बिल्कुल सही. इसके अंदर उसने ब्रेक डाउन किया है, वो मैं भी फर्दर आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि उसकी लैंड सीलिंग का मतलब ये है कि लैंड को लिमिट कर दिया गया. और ये जो क्लॉज है या ये स्टेप क्यों लिया गया, to break the stronghold of big landlords, and the output must be to increase the productivity, क्योंकि इसकी वजह से more land would be under cultivation and definitely the yield would be increased, जिसकी वजह से 2 फायदे होंगे. और एक तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज हो जाएगी प्रोडक्टिविटी, दूसरा क्या होगा कि सोशल लाइफ मस्ट बी अपग्रेडेड, क्योंकि जो आपकी सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्ट है, डेफिनेटली इट विल गिव यू अवेयरनेस, और जिसकी वजह से आपका जो बेटर है वेलफेयर सिस्टम होगा वो प्रिवेल करेगा. इसी को हम यहाँ पर स्टेप्स के अंदर ही देखते हैं कि उसने जो लिमिटेशन है उसको फर्दर कट डाउन किया एज कंपेयर टू, हम अगर देखें एज कंपेयर टू जनरल अयूब खान. अब उसने उसको कितना ज्यादा कट डाउन किया, इसको हम जरा देख लेते हैं. इसमें 150 जो है वो
150 acre irrigated and 300 acres of unirrigated land were promulgated. यानी इससे पहले 250 acres and 500 acres की बात हो रही थी, मगर यहाँ पर further cut down करते हुए 150 acre and 300 acres of unirrigated land को limit किया गया. Further, number 3, landlords and feudals were required to pay taxes. It means that the first time एग्रीकल्चरल टैक्स वाज इम्पोज्ड, ठीक है, जो कि इससे पहले नहीं था, और इसकी वजह से भुट्टो को फेस करनी पड़ी बिटर ऑपोजिशन फ्रॉम द लैंडलॉर्ड. नंबर 4 के अंदर ही आल्सो गिव द कंसेशंस टू पेजेंट्स बाय गिविंग देम लोअर रेंट, और इसके साथ साथ ही दे विल आल्सो गेट शेयर इन द produce as well. At the end of the year they will get the share in the produce as well. Number 5, security of tenancy. इसका मतलब ये होगा कि no tenant would be preempted, यानी evicted without giving any evidence or any reason. और इसको जो है it must be in favor of tenants, लेकिन हम जब इसका analysis करेंगे तो फिर हम इसको देखेंगे कि how much benefit they got. लास्ट के अंदर रेवेन्यू ऑफिसर्स, यानी जो कि हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर दे आर कॉल्ड पटवारीज, दे वर इन चार्ज ऑफ implementation of these reforms. So these were the steps which were taken under agricultural reforms. Now comes on analysis. If we see the analysis, then we will find like General Ayub Khan's agricultural reform, these reforms also benefited the big landlord as compared to small subsistence farmers. उसको हम किस तरह से प्रूव करेंगे, क्योंकि एक तो इसमें भुट्टो फेस ऑपोजिशन फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम लैंडलॉर्ड साइड्स एंड फ्रॉम द subsistence farmer side, यानी he wanted to facilitate the subsistence farming, लेकिन उसको यहाँ पर ये अपने objectives जो हैं वो अचीव करने में प्रॉब्लम दोनों सेक्टर से फेस करना पड़ी, दोनों साइड से फेस करना पड़ी, यानी both were not satisfied with these reforms. क्योंकि अगर हम देखें उसके अंदर, क्योंकि नंबर 1 तो ये कि peasants were not pleased to see these reforms because they feel that these are only lip service. और इसके अंदर the fact is that the ceiling on land was fixed per person and not per family. Per person की वजह से they have to transfer their land to their tenants, और इसको they proved it that this land is related to the tenant's property, but actually it was again under their own possession. तो इसकी वजह से हम ये देखते हैं कि लैंड सीलिंग जो है it was not practically successful as compared to the shown in his objectives or in his steps which taken by the Bhutto's government. And all it depends on Patwari's control, because Patwaris were working under the influence of big landlords. Number 2 के अंदर हम again देखते हैं कि these reforms gave the right of preemption to the peasants, लेकिन again big landlords were influential, so local administration were in favor of those big landlords. That is why again the rules were violating. जी, preemption का क्या मतलब होता है? preempt का मतलब evict करना, evict का मतलब निकाल देना. उर्दू में बताए ना, क्या निकाल देना में? जमीन यानी प्रेजेंट्स क्या है, वो काम कर रही है ना कल्टीवेटेड लैंड के ऊपर, तो उनको काम से निकाल देना, evict कर देना, हटा देना. ठीक है, अच्छा ठीक है, आगे. और प्रीएम्पशन का मतलब भी यही होता है, राइट ऑफ प्रीएम्पशन का मतलब भी यही होगा ना. ठीक है, कि उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते बगैर किसी नोटिस के, मगर उनको उसी तरह किया गया, एविक्ट कर दिया गया, क्योंकि अगेन वही बात है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपको क्या साथ नहीं दे रही होती तो कोई लॉ भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता.
चाहे वो कितना ही अच्छा लॉ क्यों ना हो, क्योंकि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली उसको इफेक्टिव बनाती है। सो हम, हाँ, इसी तरह हम नेक्स्ट के अंदर देखते हैं कि many landlords use their influence over the low paid revenue officials and tempered their record, जो अभी मैंने पहले बात की कि उसके अंदर they showed the tenant cultivated areas as self cultivated area, और जिसकी वजह से वो ये कहते थे कि ये लैंड जो है हम खुद कल्टीवेट कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको एग्जाम नहीं कर सकते, यानी इसको इट विल नॉट गो अंडर द पोजेशन ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट के अंदर एक और पॉइंट जो कि हमने पढ़ा है अयूब खान के टाइम पीरियड के अंदर ही, अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन, के लोन्स वर ग्रांटेड टू फार्मर्स फॉर बाइंग ट्रैक्टर्स एंड इंस्टॉलेशन ऑफ ट्यूबवेल्स। लेकिन यहाँ पर हम फिर वही बात देखते हैं कि पुअर पेजेंट्स एंड टेनेंट्स हैड नो रिसोर्सेज, सो दैट इज व्हाई दे डिड नॉट गेट बेनिफिट फ्रॉम दीज लोन्स, क्योंकि और अगेन मिस इसके अंदर इंटरेस्ट की बात आ सकती है कि उन्होंने इंटरेस्ट भी लिया होगा लोन्स के ऊपर, तो वो कर नहीं सकते। बेटा जो लोन्स होते हैं ना उसके ऊपर ये है सॉफ्ट लोन्स। सॉफ्ट लोन्स का मतलब ये है, आप यहाँ पर देखें सॉफ्ट लोन्स के अंदर जो इंटरेस्ट का रेट होता है वो बहुत कम होता है, बहुत नॉमिनल होता है, इसीलिए जो सॉफ्ट लोन्स होते हैं वो हमेशा बेनिफिट करते हैं किसी को भी, चाहे वो ट्रेड को कर रहे हो, चाहे वो आपकी एग्रीकल्चर को कर रहे हो, तो वो उसी के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज जो हम यहाँ पे बेसिकली एक और चीज जो मेंशन करनी जरूरी है कि दीज ये द लिमिटेशन वाज granting these loans were that the piece of land should be more than 25 acres. So more than 25 acres, it means that it will deal with the big landlords, क्योंकि subsistence farming के अंदर the size of farm would be mostly 25 acre land, यानी less than 25 acres होता है, इसलिए it was understood कि जो subsistence farmers हैं they will not be facilitated with these reforms. और अगर हम ओवरऑल इसका करें एनालिसिस करें तो अगेन एज वी फाउंड दैट द रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन जनरल अयूब खान्स पीरियड, द रिच became richer and the poor became poorer. So same we will find here in Bhutto's time period as well. But the difference between these two time periods is that Bhutto made a slogan with the common people that he will provide food, shelter and food, cloth and shelter to every पाकिस्तानी। लेकिन यहाँ पर जनरल अयूब खान ने ऐसा कोई स्लोगन गवर्नमेंट यानी लोगों को नहीं दिया था। सो द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम भुट्टो वाज मच मोर एज कंपेयर टू जनरल अयूब खान, इसलिए भुट्टो फेस्ड अ बिटर ऑपोजिशन फ्रॉम द लोकल नेटिव एज वेल। जिस तरह से उनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली लोगों के अंदर, उसी तरह से ही हैड टू फेस द ऑपोजिशन फ्रॉम द people of Pakistan as well. Number 2 के अंदर हम we will talk about the industrial reforms. Again objectives are, इसके अंदर अगर हम देखें तो 1970 का जो time period है all over the world, the trend was nationalization of industry. So Bhutto's government also followed the same tradition and the same trend, and he adopted the policy of nationalization. The objective of nationalization, the first objective was that he wanted to strengthen the state economy. और इसके लिए सबसे easy way जो होता है वो यही होता है कि you have to nationalize all the large scale industry, जिसकी वजह से ये होगा कि state का asset जो है वो बढ़ जाएगा. But we will find in एनालिसिस केस का क्या इसके बारे में हुआ, पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं. नंबर 2 ऑब्जेक्टिव वाज टू रेज द वर्कर्स लिविंग स्टैंडर्ड, बिकॉज अगेन वी विल इंक्लूड इट विद भुट्टो's स्लोगन जो उसने कहा था कि आई विल प्रोवाइड फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर टू एवरी पाकिस्तानी. तो उसकी वजह से उसको ये भी था कि टू फुलफिल दिस प्रॉमिस ही wanted to raise the workers living standard. Number 3, he wanted to improve public services like health or education as well. और जो सबसे important चीज है वो है redistribution of wealth in a fairer way. यानी like communism, he wanted to
distribute, he wanted equal distribution of wealth, जो कि सिर्फ अगर हम देखें तो अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके अंदर भी आपको थ्रू ज़कात यू आर इम्प्लीमेंटिंग दिस आइडिया के आपकी जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान अगर आप वर्ल्ड के अंदर देखें तो कम्युनिज्म जो है वो इसी आइडिया को प्रमोट करते हुए कहती है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं इट शुड कम अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्टेप्स हियर। स्टेप्स के लिए व्हाट ही डिड, सबसे पहले तो नंबर 1 ही nationalized all large scale industries. अब we have already read in geography कि large scale and small scale industries को हम कैसे differentiate करते हैं। large scale industries के अंदर जो हैं industries like steel and iron industry, cement industry, cotton and sugar industry, इसके अलावा vegetable oil as well as commercial bank and insurance companies all were nationalized. इसके अंदर एक और चीज भी है, यानी उन्होंने ये स्टेप इस वजह से भी लिया कि अगेन he wanted to adopt the policy of General Ayub Khan that he industrialized Pakistan because Pakistan was agro-based country, so he developed agricultural industry in Pakistan. ठीक है, और इसी ट्रेंड को उन्होंने कंटिन्यू किया इसको, और जो हमारी इंडस्ट्री है उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आया उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। यानी स्टेप्स तो हमने इसके बारे में बात कर ली, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेप्स की हम बात करते हैं। पॉजिटिव स्टेप्स के अंदर सबसे पहले तो ये है कि नेशनलाइजेशन ने आपको जॉब सिक्योरिटी वर्कर्स को प्रोवाइड कर दी। So this was again a popular step for the worker side as well, because उन्होंने ये फील किया कि भुट्टो's government own the workers, और इसकी वजह से workers were free to form the labor unions, और labor unions were protecting their rights। लेकिन इससे पहले चूंकि बैन था लेबर यूनियन की फॉर्मेशन के ऊपर ड्यूरिंग जनरल अयूब खान टाइम पीरियड, सो दिस वाज अ ब्लेसिंग फॉर द वर्कर्स, और इसी के थ्रू उन्होंने वर्कर्स को फैसिलिटेट इस तरह से भी किया कि नंबर 1 उनको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन इन मैनेजमेंट इन फैक्ट्रीज एज वेल एज दे वर also gain 6% of factory profits as well। इसके अलावा they were given the old age pension, और ये सारी चीजें जो थी again it comes under the favor of workers, but they violated their rights, क्योंकि उसकी वजह से उन्होंने वायलेशन की, और उसमें वायलेशन के अंडर there were some strikes, protests and shutdowns, जिसकी वजह से again Bhutto's government took some radical reforms to control all these problems। लेकिन फिर again they have to face a lot of problems, जिसको हम negative impact के तौर पर लेते हैं कि नंबर 1 क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी टू अ हॉल्ट। इसकी वजह से क्योंकि आपकी इफेक्टिव प्रोडक्शन जो है वो उसकी वजह से उसका प्रोसेस स्लो डाउन हो गया, और भुट्टो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़े विच वर नॉट इन फेवर ऑफ वर्कर्स, जिसकी वजह से उनका ट्रस्ट जो था वो बेसिकली भुट्टो गवर्नमेंट का ट्रस्ट जो था वो शटर हो गया। और इसमें एक और चीज भी जो हम ऐड करेंगे वो है Bhutto's realized that nationalization policy is not successful. That is why government decided to take them back, yani to take the large industries back to their owners. But now they were not ready to own these industries, because all these industries were in loss. So they were not ready to get it back, because they feel that, yani factory owners feel that
it would be better that they have to establish new industries as compared to get back the old ones. क्योंकि उनका इतना बुरा हाल हो गया था कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की वजह से मोस्टली पीपीपी वर्कर्स वर the high officials in the factory management who were not able to manage the problems. That is why they have to face the productivity of the industry as well. So इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि negative impacts are much more as compared to positive impacts which we find under the industrial reforms of Zulfikar Ali Bhutto. Last reform जो आती हैं वो है social reforms, and first we will talk about education here. Objectives of educational reforms are: number 1, to increase literacy, which is understood, or number 2 is to produce the skillful workers. For this purpose, he took some steps like educational institutions were nationalized, primary education was made free, more school established, and double shift were also introduced. It means that the schools were running into 2 shifts, morning and evening. Mass literacy program was promulgated. Again, we can see that the analysis we will find some positive steps, lekin more negative steps we will find here, because his educational policy gave much more popularity. It is understood that this was first time in Pakistan that free of cost education was given to every Pakistani. तो definitely ये एक बहुत ही बड़ी चीज थी जो किसने भुट्टो को बहुत पॉपुलर बनाया. लेकिन अगर हम ऑन द होल देखें तो इसी स्टेप की वजह से प्राइमरी जो आपका नजर आता है, जो आपकी ओवरऑल वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाज इफेक्टेड, because school became more crowded as well as lack of trained staff in administration and teaching. It was not a successful project, और इसकी वजह से we have to face the economic problems as well, because education department faced a lot of problems to manage all these things. Sorry. इस तरह से हम अगर बात करते हैं हेल्थ मिस, जी बेटा, क्या ये कहना ठीक होगा कि भुट्टो जो था वो एक आइडियलिस्ट था और उसकी जो पॉलिसीज थी वो टू गुड टू बी ट्रू थी और बहुत कम टाइम उसने दिया था इनको? हाँ, डेफिनेटली अगर आइडियल लीडर ना होता तो ही मस्ट नॉट सच टाइप ऑफ रेडिकल रिफॉर्म्स. आइडियलिस्टिक तो था वो, क्योंकि उसको अगर हम आइडियलिस्टिक को प्रूव करें तो ये वाली रिफॉर्म्स के साथ साथ हम उसकी फॉरेन पॉलिसी को भी अभी जो हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर भी इट प्रूव दैट ही वाज एन आइडियलिस्ट लीडर. ठीक है, ये सारी चीजों को हम एज अ प्रूफ यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो फर्स्ट टाइम ही इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान. फिर अगेन जब हम हेल्थ रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हेल्थ रिफॉर्म में अगेन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी इम्पोर्टेंट स्टेप भी आएगा कि जिसके अंदर ही बैंड द ब्रांड नेम्स. ये भी अगेन आइडियलिस्टिक को उसको रिलेट करेगा. लेकिन सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं. ऑब्जेक्टिव के अंदर उसको सबसे ज्यादा जो है, जो अभी भी हमारा प्रॉब्लम है कि मोर्टेलिटी रेट को कंट्रोल करना, यानी बच्चों की बहुत ज्यादा जो अमवात हैं उसको कंट्रोल करना, और नंबर 2 एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज करना. ये 2 मेजर ऑब्जेक्टिव नजर आते हैं, और इसको ही ट्राई टू मीट दीज ऑब्जेक्टिव्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ RHC यानी रूरल हेल्थ सेंटर एंड BHU यानी बेसिक हेल्थ यूनिट. इसके थ्रू उसको अब उसने मीट करने की कोशिश की. सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो नजर आती है, जो अगेन एक रेडिकल स्टेप है, वो ये है कि ही रिमूव द ब्रांड नेम्स, यानी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है उनको इसने ही ask them to remove the brand name, जिसकी वजह से prices of medicine were reduced. लेकिन इसका जो negative impact ये था कि these companies evicted from Pakistan, और इसकी वजह से
आपकी इकोनॉमी जो है डेफिनेटली इट मस्ट बी इफेक्टेड। नेक्स्ट के अंदर जो हम बात करते हैं, अगेन जो अभी आपने आइडियलिस्टिक की बात की उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे भुट्टो की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। अब भुट्टो की अगेन फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमें जो चीज नजर आती है, देयर इज अ चेंज इन फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज बिफोर भुट्टो वी वर proved yani Pakistan was proved as pro-American, but Bhutto changed this policy. He tried to develop relations with the Islamic countries as well as China and Russia, ठीक है, क्योंकि he withdrew from SEATO in 1972 because he found that US is not a dependable ally, and the history of 1971 and 65 war also proved it. That is why he started to make new boundings in the world community. क्योंकि जो Islam, he also tried to form an Islamic bloc as well, because he wanted that resources of Islamic countries should be together to use against the Jews lobby. और इसके लिए he gave the concept of Islamic bloc, जो कि OIC की सूरत में हमें नजर आता है, and he was successful to form this unit क्योंकि उसका ख्याल ये था, and he promoted this idea as well that if Islamic countries would be united, they can easily counter the Jews lobby. और इसके लिए जो he also hosted an Islamic Summit Conference in Lahore in 1974, जिसके अंदर more than 35 countries leaders were present. और उसके अंदर ये भी है कि we decided that Bangladesh would be an independent state as well. So इस तरीके से हम ये देखते हैं कि again with the change of this foreign policy, he also gets some facilitations from Russia, because he signed the agreement between Pakistan and Russia for establishing Pakistan Steel Mill. This was a major of project. ठीक है, तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि it comes under success of Bhutto as well. Again, he was successful to form an Islamic bloc, and he also tried to become a popular leader on Islamic in Islamic countries. और इसी की वजह से भी we can find that he had to face the consequences as well from the US side. लेकिन ये हमारी बैड लक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी बैड लक है कि we have to lose such an idealist leader. लेकिन again we can see that if the history of Pakistan, we can see that the beginning of Pakistan history के अंदर relations with the USA have remained weak. यानी अगर हम शुरू के दिनों के अंदर देखें तो it remained weak, लेकिन after 1973 we will find that there is a change in trend of Pakistan's foreign affairs, and Bhutto's government tried to make this change more successful. जी बेटा। जब हमने ये क्वेश्चन किया था भुट्टो का, तो हमने ये फॉरेन पॉलिसी तो उसकी इतनी डिटेल में डिस्कस ही नहीं की थी, हमने OIC वाला चीज डिस्कस की थी। बाकी उस वक्त हमने यार इंटरनेशनल रिलेशन ही पढ़े हुए थे हमने उस वक्त। हाँ, नहीं तो मिस अभी मैं पूछ रहा हूँ, सुन तो लेना, हो तू पहले ही बोली जा, एक्सपेक्टेड लगवा ली ना, चुप करके बैठो। 1 मिनट आप बोलो तो जी। हाँ मिस, तो मैं कह रहा था आपको कि जब अब अगर हमें सवाल आएगा कभी, तो हमने डिस्कस करना है कि नहीं, या छोड़ दें जैसे हमने नहीं किया हुआ पहले। मेरी एक बात सुनो, जब हमने फॉरेन रिलेशंस को किया तो हमने ये सारी बातें की हुई है ना, ये जो मैं अभी तुमसे कर रही हूँ, इतनी इन्फॉर्मेशन है, सारी इस्तेमाल करो, 12 नंबर मिलेंगे। हाँ, आधी से ज्यादा तो मैं भूल चुका हूँ, लेकिन मिस अब पढ़ना, पेपर में नहीं भूलना ना। भुट्टो का सवाल आया 14 मार्क का कि was the industrial reform the most important for जुल्फिकार अली भुट्टो, तो हम उनमें इनको एड्रेस करेंगे कि नहीं करेंगे? बेटा अब पहले तुम क्वेश्चन को सुनो मेरे से। ये सवाल जो आएगा वो इस तरह से आएगा कि कंपैरिजन क्या आएगा, was Bhutto's domestic reforms. जब हम डोमेस्टिक की बात करते हैं तो we are just analyzing domestic reforms,
but now we are discussing here foreign affairs. Foreign affairs is foreign policy is not a part of domestic reforms. ठीक है? अच्छा मिस एक सेकंड जी मिस, ठीक है आपकी बात की डोमेस्टिक पॉलिसीज वाला सवाल आता है, आ गया याद मुझे। और लेकिन अगर उसके अंदर फॉरेन पॉलिसी का वर्ड यूज होगा तो देन यू हैव टू एड्रेस द फॉरेन पॉलिसी। ठीक है? अच्छा जी, ठीक है मिस। और ये सारी बातें जो मैंने तुमसे की हैं ये हमने फॉरेन रिलेशंस के अंदर करी थी। जो बातें डिटेल में इसलिए वहां पे स्किप की जाती हैं कि हमने ये फॉरेन रिलेशंस के अंदर कवर करनी होती हैं। अब फॉरेन रिलेशंस के अंदर जब हम ये कवर कर लेते हैं तो यहाँ पर अब तुम्हारे जब रिवीजन कर रहे हैं तो इसके साथ हम इसको लिंक कर देते हैं, इसलिए क्योंकि देखो जब मैं यहाँ पर बात करूंगी यूएस एड की बात करूंगी, या मैं कश्मीर इशू की बात करूंगी, या मैं पाकिस्तान स्टील मिल की बात करूंगी, या मैं इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस की बात करूंगी, तो नाउ यू हैव क्लियर आइडिया व्हाट वर दीज इवेंट। अब कौन से इसके अंदर आते हैं, इसमें यू डोंट हैव एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, क्योंकि तुमने इन सब चीजों के बारे में सुना हुआ है। मगर अगर हम इसको भुट्टो के टाइम पीरियड के अंदर साथ ही फॉरेन पॉलिसी के अंदर करेंगे तो आपकी बहुत सी क्वेरीज होंगी जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। इसके लिए चूंकि अलग चैप्टर बना हुआ है इसलिए हम उसको वहां पर लेकर जाते हैं। ठीक है? मैंने मेरी बात इससे सेम थी, लेकिन सोहेल को बस ये मसला है कि अगर मैंने एक्सपेक्टेड लगवानी है तो मेरा यहाँ होना बनता ही है। हाँ चुप करके बैठ मिस। तो एक दफा मिस वो फॉल ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो जो था ना, वाई वो जुल्फिकार अली भुट्टो हैंग या जो भी, वो भी बताएंगे। एग्जीक्यूशन ऑफ भुट्टो जो है वो जनरल ज़िया के टाइम पीरियड के अंदर आएगा, इसलिए मैंने उसको उसके साथ रिलेट किया। मिस नहीं, वो भुट्टो ने फॉल ऑफ भुट्टो फ्रॉम द गवर्नमेंट। हाँ, तुम फॉल ऑफ भुट्टो की बात कर रही हो, वो मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगी क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। ठीक है मिस? वो प्रोटेस्ट हुए थे ना वो वाले, बिल्कुल, कौन सी जो भी पार्टी थी, पाकिस्तान अलायंस करके जो था। हाँ, वो रिगिंग इन इलेक्शंस की वजह से पार्टी बनी थी। ठीक है? वो सबसे मेन रीजन तो वो नहीं था, वो जो बलूचिस्तान में प्राइसिंग हो गई थी। हाँ, लेकिन पीएनएन, हाँ, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, हाँ, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, लेकिन ये बेसिक तो स्टार्ट आफ्टर रिगिंग इन इलेक्शन स्टार्ट हुई है ना प्रोटेस्ट मूवमेंट। तो ठीक है, क्योंकि जो वो भी करा देना ताकि पता तो चले। तो यार 2 पैराग्राफ है उसके बुक में सिर्फ। अच्छा, नेक्स्ट क्लास अभी 1 मिनट में तो वो नहीं हो सकता ना, 1 मिनट में तो नहीं हो सकता, इसलिए मैंने कहा कि नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है? ठीक है। सोहेल में कॉमन सेंस नहीं सकती जो बात है। क्या कह रहा है? कुछ नहीं। हाँ, चुप ही रहे जी। तो अब मैं आपको खुदाफिज कहती हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको वो टॉपिक करवा के उसको रिलेट जनरल ज़िया से कर दूंगी, और ये खत्म करने के बाद मैं आपको कंपैरेटिव स्टडीज करवाऊंगी फर्स्ट डेकेड ऑफ पाकिस्तान, यानी 1947 to 58। ठीक है? वो मैं उस तरह से आपको खत्म करवाऊंगी। राइट? ठीक हो गया मिस, सही हो गया मिस। तो फिर अल्लाह हाफिज आज की क्लास के लिए। अल्लाह हाफिज मैम। ओके मिस, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।